Hello students, now we are going to explain our next chapter. Here, my name is Professor Vibhavari Javle and I am representing this chapter for Information Technology Department. Next one, the database creation one is the basic thing we have to do first. Okay. Now, see here. So when you are downloaded the library office, this is the GUI. मतलब ये screen आ जाएगा. Then तुम्हें क्या करना है? You are going to start with the base. Okay, तो base कहाँ पर है हमारा? Open करना पड़ेगा. Open Libera Office Base. तो सबसे last वाला जो option है वो तुम open करोगे, right? देखो. When you are going from the base database open जैसे ही हो जाएगा, now you are going to start with the select database. ये तुम्हारा step 1 रहेगा. When you have been completed the step 1, now go for the step 2 for the next, right? मतलब तुमने क्या किया? Select database step 1 है, then तुम्हें next जाना है. Now again from the execution of the first step, you are going to see in the second screen. Here you are going to deal with the save and proceed step. Here you have to click on save and proceed and then press finish button, right? Then you can see the new screen, and on that screen you can get the name of your new database by default. अगर तुम्हें same नाम ही रखना है तभी तुम नाम रख सकते हो. Make it sure that this database is having extension .odb. ये क्वेश्चन तुमको जो तुम्हारे इंटरनल एग्जाम होंगे, एक्सटर्नल तुम्हारा प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, इन दैट एग्जाम दे विल आस्क यू दिस क्वेश्चन दैट ईच एंड एवरी फाइल ऑफ द डेटाबेस you must require to save it in the name of extension .odb. It is very important. Now if you like to change the name of your new database file, you can change your name. Okay, I have been given here database1.odb. Okay, see here. Then so while it is the new screen of your new database, so it will get generated when you are give any table, when you are going to generate the table or fill the data in that table. Okay, now I'm going to introduce you the first one, title bar. In that title bar, mention name of the file is the new database.odb. तो यहाँ पर तुम्हारी जो भी फाइल का तुमने नाम दिया होगा वो नाम आ जाएगा in that title bar. हर एक स्क्रीन का एक टाइटल बार होता है जहाँ पर उस फाइल का नाम जो तुमने सेव किया है वो आ ही जाएगा. हमारा डेटाबेस की फाइल का एक्सटेंशन उसके साथ आएगा new database.odb, राइट? सेकेंड वन जो है ये होता है मेनू बार. अभी मेनू बार में क्या रहेगा? सो इट इज द फाइल है, व्यू है, टूल्स एंड द विंडो है एंड द हेल्प. So these are the various the functions are available on the menu bar. Third one, standard tool bar. जो भी steps हमको बार बार क्या करना रिपीट होते हैं, the functions that required to be गेट मतलब है क्या रिपीट होने वाले हैं जो ऐसे फीचर्स है दैट शुड बी इंक्लूडेड इन दैट स्टैंडर्ड टूल बार. सो ये तुम्हारा GUI है जब भी तुम न्यू डेटाबेस क्रिएट करने जाओ. Now the next thing is the table creation. Though we have generated the database, now we are going to make the table creation. It is the most important thing while dealing with the database. And the a table, it comes with rows and the rows and the columns, right? मतलब अगर डेटाबेस हमारा हो गया है बना के, उसके बाद हमें टेबल से ही जो भी इंफॉर्मेशन रॉ डेटा हम उसमें रिकॉर्ड करने वाले हैं, दैट इज़ ओनली स्ट्रक्चर्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल. So while dealing with the database, here to make the table we have to deal with make a table. So the step 1 is click on create table in the design view, right? And before that,
in the title bar, make sure that is name of the database we have already make. Its name is 12th commerce, ओके, अंडरस्कोर डेटाबेस एंड डॉट ODB. अगर डेटाबेस है हमारा उसका नाम ऊपर आ जाता है, और अलॉन्ग विथ एक्सटेंशन डॉट ODB. नाउ जैसे ही टेबल जनरेट हो जाता है, मतलब टेबल का नाम हमने एलोकेट किया, सो व्हेन वी ओपन द टेबल 1, सो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसका नाम टेबल 1 आ जाता है, ओके. एंड देन वी कैन सी दिस काइंड ऑफ स्क्रीन. इसमें से जो फर्स्ट वन है, स्टेप 1 क्या है, द फील्ड नेम. वी हैव टू मेंशन द फील्ड नेम. सो व्हाट नेम यू विश टू गिव टू यूर सेम डेटा फील्ड. अगर कोई डेटा रहेगा, जैसे मेरे पास रोल नंबर है, तो रोल नंबर का जो फील्ड नेम मुझे एलोकेट करना है वो मैं एलोकेट कर सकती हूँ ना. कि जैसे रोल नंबर है मेरे पास, ओके, आई हैव टू मेंशन जो अपने क्लास का रिकॉर्ड बनाना है मुझे, राइट. सो इन दैट रिकॉर्ड मुझे रोल नंबर चाहिए, नेम चाहिए, राइट, उनका सिटी चाहिए एंड मोबाइल नंबर. सो दीज आर माई फील्ड नेम. लेकिन इसके जो टाइप्स होंगे, ओके, द डेटा टाइप्स आर डिफरेंट. अगर रोल नंबर है तो वो नंबर्स में आने चाहिए, नेम है तो नेम वो आना चाहिए के टेक्स्ट में, ओके, वैरकर में. देन मोबाइल नंबर अगेन शुड बी इन अ नंबर्स ऑल्सो. सो ये डेटा टाइप कौन डिफाइन करता है, फील्ड टाइप. एंड लास्ट में आता है डिस्क्रिप्शन. फॉर एग्जांपल जो फील्ड नेम है वहाँ पर मैं उसका पूरा नाम अगर कि नहीं दे पाई, जैसे रोल नंबर ROLL स्पेस NUMB बार, तो मैं वहाँ पर सिर्फ RNO इतना ही मैं फील्ड नेम की जगह पर मैं मेंशन कर सकती हूँ. एंड देन डिस्क्रिप्शन होगा मेरा पूरा, जो उसका पूरा स्पेलिंग है वो रोल नंबर. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ इंसर्ट रिकॉर्ड इन आवर टेबल. हमारे पास अभी क्या टेबल है, लेकिन टेबल के अंदर हमने सिर्फ क्या दिए हैं, फील्ड नेम्स आर देयर एंड डेटा टाइप इज देयर एंड description is there. If we need to insert the actual data, we must require to structure in a tabular format. In that way we must require to insert the record here. जैसे ही हम उसके फील्ड नेम, ओके, डेटा टाइप्स एलोकेट करते हैं वाइल मेकिंग द टेबल, वहाँ पर आ जाता है RNO, जो हमने फील्ड नेम दिया था. RNO मतलब रोल नंबर, SN मतलब स्टूडेंट नेम, सिटी मतलब सिटी मीन्स सिटी, एंड MOB मतलब मोबाइल. ये मैंने फील्ड नेम दिए थे जो उसके नाम थे, बट एक्चुअल में उसका क्या था, डिस्क्रिप्शन मैंने आगे मेंशन किया था ना. Step 1, you will get all the field names made for our table commerce-b as a RNO SN CTL. See here. ये होने के बाद ये फील्ड आ जाएंगे, बट वी हैव टू मेक टू enable to enroll the record. तो स्टेप 2 आता है, go to the edit menu, go for edit data to enable edit fields for new entry. और जैसे ही मैंने न्यू एंट्री के लिए टैब वहाँ पर ओपन किया, आप इधर देख सकते हो कि लोगो भी है वहाँ पर फॉर एडिट द डेटा. तो ऐसे स्टार का सिंबल आ जाएगा, जहाँ पर आपका टैब अगर लेके जाते हो तो आप एंट्रीज एनेबल कर सकते हो. आफ्टर enable edit data, we will get this symbol as an indication to enroll the entries. हम यहाँ पर सिंबल वो क्या मेंशन करता है कि हम आगे के एंट्रीज एनरोल कर सकते हैं. Now step 4, now we have mentioned 3 entries. If we want to continue we can add more entries. अगर 3 ही एंट्री से ज़्यादा मुझे एंट्री करने हैं तो वहाँ पर प्लस सिंबल आ जाता है. जैसे ही हम वहाँ पर एक एक रो वाइज जो भी एंट्रीज रहेंगे वो एनरोल कर पाएंगे. Last step 4, if we don't want to add more entries we can switch off the edit data by क्लिकिंग दिस आइकॉन ऑल्सो. ऊपर जो आइकॉन है वहाँ पर हमने क्या करना है, उसे अगर स्विच ऑफ किया तो आगे के एंट्रीज नहीं आएंगे, हम लोग नहीं ले सकते. मतलब इधर ही हमारे एंट्रीज है एंड दैट इज सफिशिएंट फॉर अवर टेबल, तो उसे ऑफ कर देना ना. देखिए जैसे ही मैंने वो जो आइकॉन था उसे मैंने
ऑफ करने के बाद थर्ड वाली जो फोर्थ वाली जो रो है वहाँ पर जो प्लस साइन था वो निकल गया है और यही हमारे टेबल की जो एंट्रीज है वो सफिशेंट है. आफ्टर ऑफ द edit data, the plus symbol will disappear and we can save these entries in our table till the next change. Now we are going to start the new slide. Here the step 1 is open any previous stored table. Initially we don't able to uh, uh, edit directly till we enable the edit data icon. मतलब जहाँ पहले का जो प्रीवियसली स्टोर जो कोई टेबल हमको चाहिए वो हमें क्या करना है, उससे पहले ओपन करना है एंड ओपन करने के बाद वहाँ पर नाम आ जाएगा जो हमको टेबल का नाम ऊपर जो मेन्यू बार है ना उसे क्या बोलते हैं टाइटल बार, तो टाइटल बार में दिखाई देगा. देन स्टेप 2 क्या रहेगा, व्हेन भी यहाँ पर लोगो है, देखो अगर मेनू जो हमारा ऑप्शन है कि जैसे हम कोई भी टेबल ओपन करते हैं वहाँ पर प्लस साइन नहीं दिखता है, लेकिन हमने जहाँ पर अगर मेनू अगर स्विच ऑन किया ओके तो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर प्लस साइन जैसे ही आ जाएगा तो हम न्यू जो एंट्री है वहाँ पर हम ऐड कर पाएंगे. सो स्टेप 2 क्या है, देन सो वी विल गेट प्लस साइन देयर टू एडिट. एंड इसके पहले का क्या है, स्टेप 2 क्या है कि पहले क्या करें, जैसे मैंने बताया जो ये डेटा आइकॉन है वो हमें एनेबल करना है, स्विच ऑन करना है. स्विच ऑन करने के बाद ही जो हमारा प्रीवियस जो रहेगा टेबल उसके पास प्लस साइन आ जाएगा, और जैसे भी प्लस साइन आ जाएगा मतलब क्या है कि टेबल में हम न्यू कोई जो हमारा रिकॉर्ड होगा, एंट्री होगा, वो हम डाल सकेंगे. जैसे आप लोगों ने देखा होगा ये जो टेबल था उसका लास्ट जो थर्ड वाला रिकॉर्ड था वो क्या था, शीतल के नाम से था. ओके नाउ वो मुझे चेंज करना है. मतलब ऑलरेडी जो रोल नंबर 1203 पे शीतल का नाम था वो मुझे चेंज करके सोनाली करना है. तो उसके लिए भी स्टेप 4 क्या रहती है, वी अपडेट द थर्ड रो डेटा बाय रिप्लेसिंग शीतल टू सोनाली एंड देन अगेन क्लिक ऑन द एडिट डेटा. तो हमेशा एक रो जो भी हमें चेंज करना है उसे हमें सिलेक्ट करना है एंड देन सिंपली वहाँ जाके जो भी चेंजेस करने हैं वो हम कर सकते हैं एंड देन हमें स्विच ऑफ करना है. जब भी तुम्हारा कोई एंट्रीज जो है टेबल की ख़त्म हो जाने के बाद स्विच ऑफ द मेनू. नेक्स्ट इज डिलीट रिकॉर्ड. तो डिलीट रिकॉर्ड अगर करने के लिए क्या स्टेप, ओके सी हियर, अगर कोई रिकॉर्ड मुझे डिलीट करना है तो फर्स्टली मुझे वो सिलेक्ट करना है. तो सिलेक्ट करने के बाद वहाँ पर जो रिकॉर्ड मैंने सिलेक्ट किया है वो ब्लू लाइन में आ जाता है. क्लिक ऑन रिकॉर्ड वी सपोज टू डिलीट फ्रॉम टेबल, राइट. नाउ वो डिलीट करने के बाद देन गो टू द एडिट ऑप्शन. उसके बाद चूज़ द लास्ट सेकेंड लास्ट जो ऑप्शन है वो क्या है, डिलीट रिकॉर्ड. तो क्लिक ऑन डिलीट रिकॉर्ड. वो होने के बाद देखो इट विल आस्क द वन क्वेश्चन इनटू डायलॉग बॉक्स. वो रहेगा कंफर्मेशन कि श्योरली तुम्हें जो लास्ट वाला जो डेटा है वो रिमूव करना है या नहीं, राइट. तो वो कैसे रहेगा, देन वहाँ पर करना है यस. क्लिक ऑन यस टू डिलीट रिकॉर्ड. और यस करने के बाद सी हियर टेबल में तुम्हारा थर्ड वाला जो रो है वो रिप्लेस हो जाएगा. देयर आर ओनली 2 रिकॉर्ड लेफ्ट आफ्टर डिलीटिंग द लास्ट रिकॉर्ड. थैंक यू that you are learned about the table creation while using the database. सिंपल सा है, कोई कमांड्स जो हमने देखे थे लास्ट ईयर दैट इज़ बेस्ड ऑन द उबंटू बट नाउ वी आर डीलिंग विद द लाइब्रेरा ऑफिस बेस, राइट. उसमें हमने क्या सीखा, टू मेक द डेटाबेस एंड इनसाइड दैट डेटाबेस वी लर्न टू मेक द टेबल. टेबल इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड द columns that stored or to give the information into framework, right. और इसमें हमने क्या देखा, to get the record, to update the record and to delete the record, right. Thank you.